Myself Jaiswal sir, we are learning Chordata phylum of animal kingdom. Chordata is subdivided into Urochordata, Cephalochordata and Vertebrata. Now first one is Urochordata, in which example is Tunica. Urochordata is also called Tunicata, and it has examples Ascidia, Salpa and Tunica. So here we can see tunicates and salps. Chordata contains notochord along with nerve cord. However, in Urochordata, the notochord is present only in tail parts, and these are called Urochordata. So on tail only there is notochord present along with the nerve cord in complete body. The two subphylums of Chordata, that is Urochordata and Cephalochordata, are also known as Protochordata. Here we are seeing salp, which is example of Urochordata, and nerve cord is present only in tail part, that is in larval tail. Here it is Ascidia, it is again Urochordata. So these Urochordatas are exclusively marine, and the notochord persists throughout life. See how it is respirating. Ascidia. In the given figure, the characteristic of chordata is shown that below nerve cord there is a notochord. This is again an example of Ascidia. Opening and closing, if you touch them, then their mouth closes, their opening closes. Next subphylum of phylum Chordata is Cephalochordata, in which the example is Amphioxus or lancelet. Now this is Cephalochordata, subphylum of Chordata. तो Chordata के तीन फाइलम हैं, Urochordata, Cephalochordata और Vertebrata. तो अभी हम दूसरे सब फाइलम में हैं. दिस इज Cephalochordata. In Cephalochordata, the notochord extends from head to tail. This is the difference. Cephalochordata में head से tail तक notochord है, जबकि Urochordata में सिर्फ tail में notochord थी और वो भी larval stage में थी. Lancelet और Amphioxus is the example of Cephalochordata. Cephalochordata is known as Branchiostoma. It is having very swift movement, and this is the tail part of lancelet, which comes out from the seabed. They are showing very swift movement. This is lancelet of Cephalochordata, which is second subphylum of Chordata. इसमें नोटोकॉर्ड इनके हेड से टेल तक प्रेजेंट होती है. यू कैन सी हाउ स्विफ्टली दे आर मूविंग एट द सी बेड. फ्रॉम सी बेड सॉइल इट इज देयर टेल इज प्रोट्रूडिंग to take breathe. So these are the lancelet along with a fish. Now third subphylum of Chordata, that is Vertebrata, is subdivided into Agnatha and Gnathostomata. Agnatha has jawless fish, while Gnathostomata has jaw. So first we will see Agnatha, in which Cyclostomata is the only surviving group. Other groups are extinct. So Cyclostomata ये Vertebrata का एक क्लास है जो कि अग्नाथा के अंतर्गत आता है. सो आप इसे वर्टिब्राटा में अब हम आ गए हैं, विच इज़ थर्ड सब फाइलम ऑफ कॉर्डाटा. और वर्टिब्राटा के अंदर में साइक्लोस्टोमाटा है, जिनमें जॉलेस फिश आती हैं, इनमें जॉज नहीं होते. सो जॉलेस फिश को अग्नाथा भी कहते हैं, और इसमें एग्जाम्पल्स हैं हैग फिश एंड लैम्प्रे. सो दिस इज़
हैग फिश यू कैन सी, हैग फिश थोड़ा सा मोटा होता है जबकि लैम्प्रे का स्लीक डिजाइन होता है, वो पतला होता है। दिस इज़ लैम्प्रे, बॉडी स्लीक है और इसमें डॉट्स आप देख रहे हैं जो गिल के पोजीशन में, यू कैन सी सम होल्स आर देयर, सो दिस इज लैम्प्रे। लैम्प्रे एंड हैग फिश, these are jawless fish and coming under cyclostomata। ये वर्टिब्राटा के अंडर में एक क्लास है साइक्लोस्टोमाटा, जिसमें जॉलेस फिश होती हैं। जॉलेस फिश को अग्नाथा भी कहते हैं। सो दीज आर हैग फिश एंड like suction valve is there in their mouth. So hagfish and jawfish, you can see hagfish and lamprey, these are jawless and it is coming under cyclostomata. This is hagfish. Great shot. The members of cyclostomata are ectoparasites. They live outside the body of some other organism, living organism. So these are called ectoparasites. They have elongated body bearing 6 to 15 pairs of gill slits. जैसे हमने देखा इसमें होल्स पाए जाते हैं माउथ के पास में, वो गिल स्लिट्स हैं 6 to 15 pairs. And they have a sucking and circular mouth without jaws. इनमें jaws नहीं होते हैं, sucking mouths होते हैं. Their body is having no scale and they are devoid of paired fins. इनमें fin भी नहीं होती है, ना scale होते हैं जैसे मछलियों में scale होते हैं. Now the vertebral column is cartilaginous. सो जैसे कार्टिलेज का बना होता है, बहुत फ्लेक्सिबल है, इसमें बोन का बना हुआ वर्टिब्रल कॉलम नहीं है. सो साइक्लोस्टोमाटा जो कि वर्टिब्रा सब फाइलम में आता है, तो उसमें हम देख रहे हैं कि जो वर्टिब्रल कॉलम है वो कार्टिलेजिनियस है. सी हाउ दीज आर शोइंग देयर माउथ मूवमेंट. सर्कुलेशन इज क्लोज्ड टाइप, that means it is not open. इसमें blood circulatory system है, blood vessels हैं, and these are marine. However, they can migrate to fresh water. Their larva is very much distinct from parent, and they give for their reproduction go to fresh water. And their larva, after getting developed into parent body, comes back to ocean or sea water. So this is cyclostomata. There are only two examples of cyclostomata. That is, one is hagfish and other is lamprey. This is hagfish, having 6 to 15 pairs of gills, smooth body, no scales, bone is cartilaginous. These are the properties of hagfish. These are exclusively marine. इनमें पेयर्ड फिन्स नहीं होते हैं और गिल स्लिट्स होते हैं रेस्पिरेशन के लिए. सो गिल स्लिट से ये सांस लेते हैं. देयर आर गिल स्लिट्स 6 to 15 gill slits are there. Now we will see other division of vertebrata, that is gnathostomata. So under gnathostomata there are pieces comes which are having fins. So gnathostomaटा में दो हैं, जॉ होगा लेकिन फिन्स होगा या लिम्स होगा. अगर उनमें फिन्स होगा तो उनको पिसेस कहेंगे, और जिनमें लिम्स होगा तो फिर वो आगे एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एविस और मैमल्स में डिवाइड होंगे. तो 5 क्लासेस हैं. तो अभी हम पहली क्लास में हैं पिसेस. तो इनमें जॉ है और इनमें फिन्स है. So it is coming under gnathostomata. Gnathostomata is subdivided into chondrichthyes and ostrithyes. So first is chondrichthyes. So chondrichthyes में हम देख रहे हैं sawfish. तो आप देख रहे हैं इसमें जॉ भी है और कितना शार्प जॉ है. फिन भी आप देख रहे हैं. सो sawfish आएगा, शार्क आएगी, स्टिंगरे आएगी जिसकी पूंछ में स्टिंग है, स्टिंगिंग रहेगा, और डॉग फिश रहेगी. तो अभी हम सॉ फिश देख रहे हैं. ये कॉन्ड्रिचथाइस है, इसमें फिन्स भी है और जॉज भी है.
तो इसलिए इसको ग्नैथोस्टोमाटा कहते हैं, जो कि वर्टिब्रेटा का एक सुपर क्लास है ग्नैथोस्टोमाटा। फिर उसके बाद क्लास है कॉन्डिचथाइस। सो दिस इज शार्क, आप इसकी जॉज देख सकते हैं, फिन्स भी देख सकते हैं। दिस इज स्टिंगरे, इट इज़ ऑल्सो हैविंग जॉज एंड फिन्स। दिस इज स्टिंगरे। These are having streamlined body and cartilaginous endoskeleton. इनका अंदर का जो स्केलेटन है वो भी कार्टिलेज का बना हुआ होता है। माउथ वेंट्रल है, जैसे हम लोगों का माउथ है आगे की ओर, पीछे नहीं है, इससे इनका भी माउथ वेंट्रल है। एंड नोटोकॉर्ड परसिस्टेंट थ्रू आउट लाइफ, पूरी लाइफ में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट रहेगी। नर्व कॉर्ड के नीचे नोटोकॉर्ड रहेगी और वो पूरी लाइफ में प्रेजेंट रहेगी। एंड गिल स्लिट्स आर सेपरेट, सो इनमें गिल स्लिट्स सेपरेट होंगे। सो गिल स्लिट्स आर नॉट विथ कवर, सो दे आर विदाउट कवर इन कॉन्डिचथाइस। टीथ्स आर मॉडिफाइड एंड बैकवर्ड डायरेक्टेड, पीछे की तरफ होते हैं, टीथ आगे नहीं होते हैं, थोड़ा बॉडी के अंदर की ओर डायरेक्टेड होते हैं। Their jaws are very powerful. These animals, जैसे वाइट शार्क में आप देख सकते हैं कि उनके जॉस पीछे की तरफ होते हैं। So these animals, ये प्रीडेटर्स होते हैं, ये प्रे का शिकार करते हैं। Some are having electric organs, जैसा कि टारपीडो में होता है, और किसी में पॉइजनस स्टिंग होती है, दैट इज़ ट्राइगॉन। सो किसी में पॉइजनस स्टिंग हो सकती है जैसे स्टिंगरे है, और किसी में इलेक्ट्रिक ऑर्गन होगा टॉर्पीडो। दीज आर पोइकिलोथर्मस, दैट मीन्स देयर बॉडी टेम्परेचर इज, देखिए इसमें शार्क में अंदर की ओर जॉज हैं। सो दीज आर पोइकिलोथर्मस, दैट मीन्स दीज आर कोल्ड ब्लडेड, जैसा बाहर का टेम्परेचर होगा वैसा ही इनका अंदर का होगा। ऐसा इस वजह से होगा क्योंकि इनमें 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है, एक ऑरिकल होता है और एक वेंट्रिकल होता है, वेरी प्रिमिटिव हार्ट होता है। दे हैव इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड विविपेरस, इट इज मैनी आर विविपेरस, सम आर ओविपेरस ऑल्सो। पिसेस एक सुपर क्लास है और उसमें कॉन्डिचथाइस एंड ऑस्टिचथाइस 2 क्लासेस आती हैं। सो वी आर नाउ एट ऑस्टिचथाइस। कॉन्डिचथाइस में देखा था हमने एंडोस्केलेटन कार्टिलेजिनियस था, जबकि इनमें बोनी एंडोस्केलेटन होता है। बॉडी इनकी भी स्ट्रीमलाइंड होती है एंड मोस्टली टर्मिनल, दैट इज एंड एट शार्प एंड्स। दे हैव 4 pairs of gills which are covered with gill cover, that is operculum. Skin is covered with scales. Air bladder is present within them which regulates buoyancy, जो इनको float कराता है. Heart is 2 chambered, 1 auricle and 1 ventricle. They are again poikilothermous. So poikilothermous means cold blooded. ये ऐसा इस वजह से है क्योंकि इनमें जो हार्ट है वो पुअरली डेवलप्ड है, सो ज़्यादा ब्लड को ये थ्रो नहीं करा सकता, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। मिक्स्ड ब्लड पूरी बॉडी में जाता है तो रेस्पिरेशन अच्छे से नहीं हो पाता। सो दीज आर वेरियस एग्जाम्पल्स ऑफ ऑस्टिच थाइस। सेक्सेस इसमें सेपरेट्स होते हैं, दीज आर डायशियस। फर्टिलाइजेशन इज़ एक्सटर्नल, तो इसमें फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है, जबकि पहले जो हमने देखा था कॉन्डिचथाइस में तो उसमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन था, इसलिए वो विविपेरस थे, और इसमें एक्सटर्नल है तो ओवम यानी ओविपेरस, तो इसमें एग्स डेवलप होते हैं। तो जो स्पर्म्स एंड ओवा है वो बाहर छोड़ दिए जाते हैं और फिर वहीं पर जाइगोट बनता है। सी के सरफेस में ऐसा होता है। ऑस्टिचथाइस के कई एग्जांपल्स हैं, जैसे हम यहाँ एंजल फिश देख रहे हैं, सी हॉर्स इज़ नेक्स्ट एग्जांपल, दैट इज़ रोहू, जो कि एक सी फूड है, फेवरेट सी फूड है। कटला, तो रोहू कटला ये फ्रेश वाटर में भी रहते हैं। एंड मागुर, मागुर में आगे कुछ टेंटिकल्स माउथ के आगे निकले रहते हैं, तो मागुर है। दैट इज़ बेटा फिश, फ्लाइंग फिश, पानी में बहुत ऊपर ऊपर तक उछल जाती है, तो बेटा फिश है। और एंजल फिश, सो एंजल फिश बहुत अच्छी लगती है। सो रोहू कटला ये किस तरीके की मछलियाँ हैं? दीज आर फ्रेश वाटर एज वेल एज मैराइन, सो दीज आर फेवरेट सी फूड।
These are seaweeds, these are fish weeds, जो living fish weeds है. This is sea horse, ये सी के अंदर रहता है, ये भी सी फूड के तौर पर यूज़ होता है. सो पीसेज में एक है कॉन्ड्रिच थाइस जिसमें कार्टिलेजिनियस स्केलेटन है, एंडोस्केलेटन, और इन सब में बोनी एंडोस्केलेटन है. ये ऑस्ट्रिच थाइस हैं. सो पीसेज एक सुपर क्लास है और उसकी दो क्लासेस हैं जो कि कॉन्ड्रिच थाइस एंड ऑस्ट्रिच थाइस है. यहाँ हम सी हॉर्स देख रहे हैं, इसमें स्टिंग्स निकले हुए हैं बाहर में, वो दिखाया गया है. ये टाइनी होता है, ये फिंगर लाइक होता है. दुनिया भर में ऐसी कई घातक मछलियां पाई जाती हैं जो पलक झपकते ही अपने से 10 गुना बड़े जानवर को भी से लोहे तक को चबा लेने वाली मछलियों से पानी में मौजनाक और जानलेवा मछलियों के इस दुनिया के सबसे क्योंकि दिखने में ये पूरी तरह एक समुद्र में पड़े हुए पत्थर की तरह लगती है और इसी की वजह से इस फिश का नाम स्टोन फिश पड़ा. जो चीज इसे खतरनाक बनाती है वो है इसका पथरीला रंग एवं रूप और कई जहरीली सुइयों से भरी इसकी पीठ. मछली की सबसे खास बात यह है कि ये पानी के बाहर भी करीबन 24 घंटे तक जिंदा रह सकती है. ऐसे में कई बार समुद्र के किनारों पर या चट्टानों के बीच में ये दिखाई भी नहीं भी गवा देते हैं. पिराना. सभी मछलियों की प्रजातियों में पिराना मछली सबसे ज्यादा खूंखार और बेरहम मानी जाती है. बेहद गुस्सैल और आक्रामक स्वभाव वाली इन मछलियों के दांत बहुत ज्यादा नुकीले और पूरे समय भोजन और शिकार करने के लिए तत्पर रहती हैं. इसलिए जन्म के दौरान अंडे से बाहर आते ही ये छोटे छोटे समुद्री जीव, फल और पौधों को खाना शुरू कर देते हैं. फिर थोड़े बड़े होते ही अपनी ओर आने वाली दूसरी मछलियों को ये जिंदा खाने लगती हैं. ये मछलियाँ ज्यादा झुंड में रहती हैं और झुंड में ही बोटी करके खाना शुरू कर देती हैं. फिर चाहे इनकी चपेट में आने वाला 100 से भी ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर आई थी. वहीं साउथ अमेरिका के स्थानीय लोग पिराना मछली के दांतों से हथियार प्यारों को वैम्पायर फिश के नाम से भी जाना जाता है और ये पिराना से भी ज्यादा हिंसक होती हैं. इनके खतरनाक होने की वजह है इनके मजबूत जबड़े और बेहद तेज धार वाले दांत. इनके निचले जबड़ों में 2 बड़े आकार के नुकीले दांत होते हैं जो मुंह बंद करने पर जबड़े के अंदर बने छेद में घुस. बफर फिश की खास बात यह है कि जरूरत पड़ने पर ये अपने शरीर को फुलाकर एक बॉल में ट्रांसफॉर्म कर लेती हैं जो कि इस मछली का एक डिफेंस मैकेनिज्म है और इसी की मदद से अपने शिकारियों से ये अपना बचाव कर पाती हैं. जो चीज इन मछलियों को खतरनाक बनाती है वो है इनके तेज धार वाला वासकता. जहरीली होने के साथ साथ इनके दांत भी बेहद तेज, कभी-कभी लिम्स उनमें फेदर बन जाते हैं, कभी और किसी तरीके से मॉडिफाई आ जाएं तो एक बाइट में ही पाचन हर तरह की वस्तु को आसानी से खतरनाक समुद्री ऑस्ट्रिच थाइस जिनमें बोनी स्ट्रक्चर होता है. Now clownfish is there. There are many types of fishes which is in ostrich thighs. This is again angelfish which has been shown. So other fishes are also has been shown. Betta, such a beautiful fins are there. A pair of fins. Tang. These all are ostrich thighs having bony endoskeleton with scales on their body. 4 pairs of gills are present. Mouth is terminal. Some are fresh water, some are marine water. Aquarium में भी ये सारी fishes आपको मिल जाएंगी. These are Poikilothermus. तो यहाँ पर एक शार्क भी दिखाई गई है. शार्क जो है वो कॉन्ड्रिच थाइस का है जबकि इसमें दिखा दी गई है. हम ऑस्ट्रिच थाइस देख रहे हैं. There are many types of mandarin. It is also aquarium fish, parrot fish. So many a kind of fishes are there in ostrich thighs. Neon type light it emits, so it is tetra neon. It is grouper. So it is just familiarization of various kinds of fishes. This is zebra fish, platyfish, little flat, so platyfish, puffer fish, swollen. Piranha is very dangerous fish. So piranha is also shown here. Predator. Piranha is a dangerous predator. Oscar, butterfly fish looking like butterfly.
koi fish, gourami. There are a number of fishes which has been shown, but the common things are there. We can see that the pairs of fins की इनमें कैसे पेयर्स ऑफ फिन्स हैं, तो ये देख सकते हैं। और पोइकुलोथर्मस हैं, बॉडी में एयर ब्लैडर है जो कि इनको बुयांसी देता है और फ्लोट करने में मदद करता है। और हार्ट 2 चैम्बर्ड है, कोल्ड ब्लडेड है, सेक्स सेपरेट है और ओवी पेरस हैं, क्योंकि इनका फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है। जिसमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है वो वीवी पेरस हैं, जिसमें एक्सटर्नल है वो ओवी पेरस हैं। एंड डेवलपमेंट इज डायरेक्ट, तो उसी एग से ही फिर फिश आ जाती है। इनडायरेक्ट नहीं है, जैसे कि हम देखते थे इंसेक्ट्स में कि वो 2-3 बार अपने स्केल को रिमूव करते हैं, तो कभी एग से हैच करते हैं, कभी स्केल से हैच करते हैं, वैसा इनमें नहीं है। इनमें मॉर्फोलॉजिकली वो सिमिलर ही होते हैं, तो इसलिए डेवलपमेंट इज, जो इनके बच्चे हैं वो मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होते हैं, तो डेवलपमेंट इज डायरेक्ट। 4 पेयर्स ऑफ गिल्स होते हैं, 2 पेयर्स ऑफ फिन्स होते हैं, दैट ऑल वी कैन सी। As per their shape also their name has been given. Barracuda, these names have been given. Sardine is a favorite seafood. This is used. Tuna is also seafood. Like katla, magur, rohu, these are seafood. Sea bream, lengthwise there are, you can see like ancoi is a seafood, sturgeon, trout. So number of fishes are listless. So if the exoskeleton is very much, then it is, now it is flying fish. It flies up to several meter high in sea, like you can see. So these are known as flying fish. It is again example of ostisthites. Now we will come to tetrapoda, next super class of gnathostomata, जिनमें jaws होते हैं और limbs होते हैं। अब हम tetrapoda में आ गए हैं। tetrapoda एक सुपर क्लास है जिसकी एक क्लास है एम्फीबिया। सो एम्फीबिया में अब हम देखेंगे टोटल 5 क्लासेस होती हैं, दैट इज फिशेस, एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, एविस एंड मैमल्स। तो एक क्लास हमने देख ली जो कि फिशेस की है, जिसे सुपर क्लास कहा गया था। उसमें कॉन्ड्रिस्थाइस और ऑस्टिस्थाइस था, और बाकी की हम जो 4 क्लासेस हैं वो यहाँ देख रहे हैं। इट इज़ एम्फीबिया। एम्फीबिया में ये टोड है। टोड में आउटर बॉडी में आप देखेंगे बहुत उठा उठा रहता है, ये भद्दा सा रहता है। सो प्रोट्रूशंस आर देयर, स्केल्स, इसमें काफ़ी ज़्यादा आउटसाइड बॉडी में स्मूथ स्किन नहीं होती है, तो वो टोड है। जबकि फ्रॉग में स्मूथ स्किन होती है। एम्फीबियंस में ये पानी में जाते हैं फर्टिलाइजेशन के लिए, वरना पानी के बाहर भी ये रह सकते हैं, ज़मीन में भी चल सकते हैं। सो इनिशियल स्टेज में गिल्स होते हैं, बाद में इनमें लंग्स आ जाते हैं। स्किन इनकी मॉइस्ट होती है, इसमें स्केल नहीं होते। ये कुछ ट्री फ्रॉग हैं, दीज आर वेरी टाइनी फ्रॉग्स। So amphibian lives in, amphi means both beings, so which can live in their life in both water and terrain. Beings means life, bios means life, so इसलिए they can live both in water and terrain, that's why they are known as amphibians. So amphibians have 2 pairs of limbs. इनमें आगे के पैर 4 लिम्स हैं और हिंड लिम्स हैं, तो 2 पेयर ऑफ लिम्स हैं। बॉडी इज डिवाइडेड इनटू हेड एंड ट्रंक। इनमें थोरैक्स नहीं होता है, सिर्फ हेड है और पीछे पेट है। टेल में भी प्रेजेंट, जैसे सैलामेंडर में टेल है, तो बाकी तो टेल नहीं होती है। द एम्फीबियन स्किन इज़ मॉइस्ट, लेकिन इनमें स्केल नहीं होता है इनके स्किन में, और ये मॉइस्ट होती है। हाथों से फिसल जाते हैं क्योंकि इनकी बॉडी के स्किन पे म्यूकस होता है।
आईज में आईलिड्स होती है, एक नया डेवलपमेंट है, अभी आई में आईलिड्स पाई जाने लगी हैं। इसके पहले ऑस्टिस्थाइड्स, कॉन्ड्रिस्थाइड्स जो कि सुपर क्लास पिसेस के क्लासेस थे, उनमें आई में आईलिड्स नहीं थी, इनमें होती है। सो टिम्पेनम इज रिप्रेजेंट द ईयर, एक प्रिमिटिव ईयर होता है तो जिसको कि टिम्पेनम कहते हैं। हम लोगों में पिना होता है, एक्सटर्नल ईयर्स होते हैं, वो इनमें दिखता नहीं है, बहुत छोटा सा कहीं होल होगा उसी से सुनते हैं, तो उसको टिम्पेनम कहते हैं। इनमें जैसे टेल है तो इसको सैलामेंडर, दिस इज सैलामेंडर, इट इज़ tail. It is again amphibian. It is having no scale, slippery skin which is moist, having mucus, full of mucus, जो फिसल जाएगा हाथ से। 4 पेयर ऑफ लिम्स आप देख सकते हैं सैलामेंडर में, और इनमें डॉट्स होते हैं, येलो कलर के डॉट्स। इट कैन ईजिली बी डिटेक्टेड, दीज आर नॉट लिजर्ड। लिजर्ड तो ड्राई होता है, लेकिन ये मॉइस्ट होते हैं, पानी में रहते हैं। So a number of cute salamanders you can see which are amphibian, these are non-poisonous. Heart is 3-chambered in amphibians. Respiration either by gills, lungs or through skin. तो तीनों केसेस होते हैं। लार्वा में गिल से होता है, जब बड़े हो जाते हैं तो इनमें फिर लंग से रेस्पिरेशन होता है। तो मेढक पानी में थोड़ा ऊपर ऊपर आता है, वो रेस्पिरेशन के लिए, लंग से रेस्पिरेशन के लिए आता है। हार्ट इसमें 3 चैम्बर्ड होते हैं, 2 ऑरिकल्स होते हैं और एक वेंट्रिकल होता है। एक से ब्लड आता है और 2 से जाता है, तो 2 से जाएगा तो एक जाएगा हार्ट में और एक जाएगा बॉडी में, तो 2 ऑरिकल्स होते हैं। नाउ टेट्रापोडा में अब हम दूसरे क्लास में पहुंच चुके हैं जो कि रेप्टिलिया है। रेप्टिलिया मीन्स रेप्टाइल, जो कि क्रीपिंग करके चलते हैं, जो सरक के चलते हैं, उनको रेप्टिलिया कहा जाता है। स्नेक्स हैं, इसमें क्रोकोडाइल्स हैं, एलिगेटर्स हैं, वॉल लिजर्ड है, कोबरा है, वाइपर है, क्रैथ है, ट्री लिजर्ड है, टॉर्टॉइज है, टर्टल है। दीज ऑल आर रेप्टिलिया। सो रेप्टिलिया इज क्रीपिंग और क्रॉलिंग एंड दे आर प्योरली टेरेस्ट्रियल, ये वाटर में नहीं जाते हैं। सब में बी वाटरी, अदरवाइज दे आर प्योरली टेरेस्ट्रियल, mostly terrestrial animal. It is covered with dry and cornified skin. So dry skin होती है इनमें, moist नहीं होती है, क्योंकि ये डेजर्ट में भी रहते हैं, मोस्टली डेजर्ट में पाए जाते हैं। एपिडर्मल स्केल्स, सो इसमें बाहर में स्केल्स होते हैं, वो स्क्यूट्स कहलाते हैं। दैट आर नॉट सच स्केल्स जैसे फिश में होते हैं जो कैल्सीरस है, वैसा स्केल इनमें नहीं होता है, बट स्क्यूट्स होते हैं। दे डू नॉट हैव एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग, तो एक्सटर्नल ईयर की इनमें कोई ओपनिंग नहीं होती है। टिम्पेनम रिप्रेजेंट ईयर्स, सो बहुत प्रिमिटिव ईयर है जिसको कि टिम्पेनम कहते हैं। लिम्स व्हेन प्रेजेंट, अगर प्रेजेंट हैं तो 2 पेयर में हैं, और स्नेक्स में तो लिम्स प्रेजेंट नहीं होते। हार्ट इज़ 3 चैम्बर्ड, तो ये 3 चैम्बर्ड होते हैं, और इसलिए पॉइकिलोथर्मस हैं, यानी कोल्ड ब्लडेड हैं। सेक्सेस आर सेपरेट, दीज आर डाइएशियस। क्रोकोडाइल सिर्फ एक ऐसा इनमें एग्जाम्पल है जिसमें 4 चैम्बर्ड हार्ट है, अदरवाइज सारे एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स में 3 चैम्बर्ड हार्ट है। पिसेस में 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है, ये हमने देख लिया। 4 चैम्बर्ड हार्ट अगर आपको चाहिए तो आगे चल के एविस यानी बर्ड्स एंड मेमेलिया में होता है। तो अलग अलग कैटेगरी यहाँ बताई गई हैं। दिस इज टर्टल। So we are seeing here various reptiles, 2 pairs of limbs हैं, 4 limbs and hind limbs. Turtle is hatching out from egg. Now reptiles are poikilothermous, cold-blooded, and snakes and lizards shed their scale and skin. So snake और lizard में वो frequently अपनी skin को शेड करते रहते हैं। दिस इज स्नेक एंड हाउ स्विफ्टली इट इज मूविंग इन डिजर्ट एरिया। यू कैन सी द देर आर वेरियस टाइप्स ऑफ मूवमेंट ऑफ द स्नेक। दीज आर पॉइजनस। सेक्सेस इसमें सेपरेट होते हैं। दिस इज डाइएशियस, सो मेल एंड फीमेल आर सेपरेट। फर्टिलाइजेशन इंटरनल तो होता है, बट फिर भी ये ओवी पेरस होते हैं। इंटरनल फर्टिलाइजेशन के बाद भी ये एग देते हैं। सो यहाँ पर हम लोग
अलग अलग एग्जाम्पल देख रहे हैं, शैमिलियन देख रहे हैं, इट इज़ अगेन ए काइंड ऑफ रेप्टाइल। ये फ्रॉग की तरह अपनी जीभ को बहुत बाहर निकाल लेता है और अपने शिकार को पकड़ता है। सो इस तरीके से देखिए किस तरीके से कितनी लंबी, ऐसा फ्रॉग भी करता है और अपने शिकार को, इसमें म्यूकस होता है, उसमें शिकार है या इंसेक्ट है वो चिपक जाता है, मॉस्किटो चिपक जाते हैं। तो शैमिलियन, टोड, फ्रॉग ये इसी तरीके से अपने जो प्रे को पकड़ते हैं। दे कैन चेंज देयर कलर ऑल्सो, तो इनमें कलर के भी कुछ इस ग्लैंड्स होते हैं जिससे ये जहाँ रहते हैं अपने आसपास के वातावरण में आसानी से अपने कलर को चेंज कर सकते हैं। दे हाइड इन दैट एटमॉस्फेयर, सी हाउ फ्रीक्वेंटली दे आर चेंजिंग देयर कलर्स, दे आर ऑफ डिफरेंट कलर्स एज पर द एटमॉस्फेयर। अगर मोटा भद्दा सा कहीं आपको दिख जाए जो क्रोकोडाइल जैसा होगा तो एलिगेटर होगा, अदरवाइज क्रोकोडाइल्स आर स्लीक। There is little difference between alligator and crocodile. Crocodile is also freshwater or marine, कहीं भी हो सकते हैं. So these are examples of reptilia. Now see the spindle-like parts are there as exoskeleton. So these all are reptiles, that is turtle, tortoise, tree lizard. ट्री लिजर्ड भी होती है और कुछ वॉल लिजर्ड जैसे ट्री लिजर्ड है, गिरगिट, और वॉल लिजर्ड जो हम लोगों के घर में पाई जाती है वो वॉल लिजर्ड है। तो दिस इज ट्री लिजर्ड, थोड़ा सा अंतर है, गिरगिट भी अपने रंग बदल सकता है। और कुछ गार्डन लिजर्ड होती है जो घर में हमारे पाई जाती है। नाउ ट्री लिजर्ड इज़ द शैमिलियन, शैमिलियन जो हमने पीछे देखा था वो ट्री लिजर्ड है। वॉल लिजर्ड ये है, और तीसरी चीज़ है ये गार्डन लिजर्ड जो कि गिरगिट है। तो शैमिलियन हमने देखा था जो अपने माउथ से कैसे मच्छर पकड़ रहा था, उसको कहेंगे ट्री लिजर्ड, और गिरगिट को कहेंगे गार्डन लिजर्ड, और वॉल लिजर्ड हम लोग के घर में पाई जाती है। यहाँ हम देख रहे हैं कि अगर ये अलग से इसमें जो ऊपर का एग्जोस्केलेटन है बिल्कुल अलग है तब फिर उसे टॉर्टाइस कहेंगे, और अगर एग्जोस्केलेटन बॉडी का इंटीग्रल है तो टर्टल कहेंगे। टर्टल छोटा होता है, टॉर्टाइस बड़ा होता है। Reptiles move somewhere warmer. These all are often a nice examples sunny of reptiles. To cool down, reptiles move somewhere This cooler. is again Perhaps into the water a or a reptile. nice shady burrow. Snake, Because viper, of this, crab, reptiles mainly live places cobra. where it does These are not get poisonous too cold. snakes, and there are This other is probably categories why of snakes reptiles live also. on every continent We know that they except hatch for Antarctica. eggs. Their And skin these are is one good way to oviparous. tell if the animal you So are they looking leave at is a their reptile scales, or an that they amphibian. leave frequently their skins Reptiles' because scaly they are skin is moving dry on and terrain. watertight. So skin when It get may be rough or smooth, damaged, it is to be dull changed or or shiny, but never removed. slimy. so If you see an animal that It looks is, like a snake or a lizard, but it has wet there are or slimy various skin, reptiles. It is you're salamander. It probably is looking at a an kind of amphibian which instead has of a been shown here. reptile. Almost all reptiles lay eggs, It is although a some give hatching birth egg. to live young. See, this is a Unlike birds' eggs, which have hard tortoise shells, which is reptile hatching. eggs are soft and leathery. Unlike amphibians, reptiles lay their eggs So on land. for hatching egg, they are making place reptiles so that that they spend most can of their time hatch in the egg water, and hide like them. alligators In and this sea way, turtles, lay their eggs on tortoise dry is land. making some planning. Reptiles are fascinating it is creatures a and come in poisonous many different venomous shapes stain. and sizes. These are Some people even various keep reptiles turtles, as pets. Some reptiles make good pets, chameleon, and some would make very bad pets. alligator. Alligator is I hope you little, enjoyed learning वो about थोड़ा reptiles मोटा today. रहेगा. Goodbye till next time. It is turtle which has been shown. So in case of reptiles, these are mostly terrestrial and body is cornified and dry. They do a crawl for locomotion. Now we are
इन नेक्स्ट क्लास दैट इज़ एविस। सो अभी हमने देखा कि ग्नैथोस्टोमाटा में एक जिनमें जॉज होते हैं और 4 पैर होते हैं उनको टेट्रापोडा कहते हैं। टेट्रापोडा में हमने देख लिया एम्फीबिया, रेप्टिलिया, और अब टेट्रापोडा यानी चतुष्पदीय जानवरों में अब हम एविस देखेंगे। दे आर हैविंग 4 लिम्स बट द 4 लिम्स आर, जो आगे के दोनों लिम्स हैं वो फैदर में कन्वर्ट हो चुके हैं और जो हिंड लिम्स हैं, जो पीछे के पैर हैं, उनसे चलते हैं। सो 4 लिम्स आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू फैदर for flying purpose. Now, so these are avis, a class of super class tetrapoda. तो avis एक क्लास है और इसकी क्लास है सुपर क्लास है टेट्रापोडा। इसका अगर हम और देखेंगे तो बाकी सब फाइलम वर्टिब्राटा है और इसके बाद वर्टिब्राटा के अंदर ये ग्नैथोस्टोमाटा में आते हैं। सो दीज आर एविस। ये बीक होते हैं, इनमें क्या क्या प्रॉपर्टी है कि फैदर होंगे, मोस्ट ऑफ देम कैन फ्लाई एक्सेप्ट फ्लाइटलेस बर्ड लाइक ऑस्ट्रिच है, हैवी है, बट वो ऑस्ट्रिच में कितना बड़ा एग है आप देखिए, ऑस्ट्रिच का सबसे बड़ा अंडा होता है। सो दे कैन रन स्विफ्टली, सो नो नीड ऑफ फ्लाइंग फॉर देम, अदरवाइज ऑल कैन मेक फ्लाइट। फ्लाइट इज़ पॉसिबल, पेंगुइन में भी फ्लाइट पॉसिबल नहीं है और ऑस्ट्रिच में भी नहीं है। दे पजेस बीक, 4 लिम्स आर मॉडिफाइड इनटू विंग्स, आगे के जो लिम्स हैं वो विंग्स में मॉडिफाई हो गए हैं। दिस इज पीकॉक, हाउ ब्यूटीफुल इट इज़। सो पीकॉक एंड पीहेन, दीज आर 2 पीकॉक इज हैविंग वेरी गुड feather. Now, hind limbs are generally having scales and modified for walking. हिंड लिम्स पीछे के पैर वॉकिंग के लिए हैं, आगे के पैर फेदर बन चुके हैं। हिंड लिम्स में स्केल होंगे, वो क्लैस्पिंग के काम में भी करेंगे, स्विमिंग भी कर सकते हैं किसी किसी में तो, और ब्रांचेस में चढ़ भी सकते हैं। स्किन इज ड्राई विदाउट ग्लैंड्स, स्किन में कोई ग्लैंड नहीं है, ड्राई है और एयर भरा हुआ रहता है। जो इनमें विंग्स हैं उनमें एयर भरा है जिससे कि इनको बियॉन्सी मिल सके जब ये फ्लाई करें। सो ऑयल ग्लैंड्स ओनली इज एट बेस ऑफ टेल, तो बेस ऑफ टेल पर ही ऑयल ग्लैंड रहेगी। एंडोस्केलेटन फुली जो भी है वो ऑस्टियोसाइट्स यानी बोन्स का बना होता है। तो इनमें एंडोस्केलेटन बोन है और एक्सोस्केलेटन विंग्स है। तो इसमें इस तरीके से है। बाहर का जो एक्सोस्केलेटन हम कहेंगे तो विंग से इनकी सुरक्षा होती है। नाउ द एंडोस्केलेटन इज लॉन्ग बोन, अंदर का भी जो स्केलेटन है वो बोन है लेकिन वो हॉलो बोन्स है जो इनको लाइट बनाता है और फ्लाइंग के लिए एक सपोर्ट देता है। उनमें एयर कैविटी होती है जो कि एक न्यूमेटिक सिस्टम कहलाता है। सो एंडोस्केलेटन यानी जो ऑस्टियोसाइट्स हैं, ऑस्टियोसेल्स हैं, उनमें हवा भरी होती है जो कि न्यूमेटिक सिस्टम है। डाइजेस्टिव ट्रैक इज हैविंग एडिशनल चैम्बर्स, सो द क्रॉप एंड गिजार्ड, सो इनमें डाइजेस्टिव ट्रैक में अलग एक चैम्बर है जिसे क्रॉप एंड गिजार्ड, दीज आर द 2 चैम्बर्स प्रेजेंट। हार्ट इज कम्प्लीटली 4 चैम्बर्ड, ये 4 चैम्बर्ड हैं। सो होमियो थर्मस हैं, यानी ये वार्म ब्लडेड हैं। जैसे बाहर का बॉडी टेम्परेचर, बाहर का टेम्परेचर होगा वैसा उसके हिसाब से इनमें बदलता नहीं है। इनकी बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट बना रहता है। जैसे हम लोगों का 37 डिग्री सेल्सियस है, वैसे ये भी होम्योथर्मस हैं, वार्म ब्लडेड हैं, 4 चैम्बर्ड हार्ट है। सो एफिशिएंट ब्लड सप्लाई है, रिच सप्लाई की वजह से इनमें रेस्पिरेशन फास्ट है और रेस्पिरेशन ज़्यादा होने की वजह से एनर्जी ज़्यादा एमिट करते हैं और अपनी बॉडी के टेम्परेचर को ये कांस्टेंट रख पाते हैं। इट इज़ ऑल ड्यू टू 4 चैम्बर्ड हार्ट। दीज आर वेरियस वल्चर्स जो कि सेप्रोफाइट है, तो ये सभी बर्ड्स के एग्जाम्पल हैं। ऑस्ट्रिच का बहुत बड़ा एग होता है, रन करता है, फ्लाइट पॉसिबल नहीं है। पेंगुइन भी ये स्विम कर सकते हैं लेकिन उड़ नहीं सकते। तो इसमें जो है नाइट के लिए सेंसर्स होते हैं बहुत ज़्यादा, इसमें रॉड्स होते हैं तो नाइट में ये देख सकता है, आँखों में रॉड्स बहुत ज़्यादा हैं। दिस इज क्रो। ए नंबर ऑफ एविस आर देयर, हैन गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन along with its eggs
Canary. So these are homeothermos. Nightingale. They able to maintain constant body temperature. Respiration इनमें लंग से बुलबुल. होगा. Air sacs connected to lungs supply respiration. Tailor bird. Sexes are separate. Fertilization इनमें internal है, लेकिन फिर भी Quail. ये ओवीपेरस हैं और इनका डेवलपमेंट डायरेक्ट है. जो बच्चे होते हैं वो मॉर्फोलॉजिकली अपने पेरेंट्स से सिमिलर होते हैं. सो ओवीपेरस होते हैं. Goldfinch. देयर आर ए नंबर ऑफ एविस आर शोन ओवर हियर. Starling. Starling. So a number of beautiful aves are Skylark. skylark. So कई टेम्परेट क्लाइमेट में कोल्ड एरिया में पाए Mockingbird. जाते हैं और कई पक्षी ऐसे हैं Minuet. जो ट्रॉपिकल जैसे कि इक्वेटर के आसपास पाए जाते हैं. हमिंग बर्ड सबसे Puffin. छोटा पक्षी है. ऑस्ट्रिच सबसे बड़ा पक्षी है. सो दीज आर वेरियस एविस. Babbler. कई जो फूड वेब में सबसे ऊपर आते हैं Kiwi. तो ईगल हो गया, ये सब ऊपर आते हैं. Bee eater. which means they have वुडपेकर backbones. उसकी बहुत अच्छी And बीक like होती है. mammals, they are warm-blooded. दिस इज All क्रेन. birds सो have two legs, wings and feathers, and beak various or other birds bill. are there and they lay eggs. now. Birds can be found everywhere in It the is world, goraya. from the frigid Antarctica, only 5 Penguin. centimeters or 2 inches in length, Some To the hummingbirds, ostrich. ostrich. So a 2.75 list meters is or there 9 for feet tall. these. There are more than 10,000 species of birds in the Ah. world. Parrots Birds are there are and other everywhere. birds. Birds eat many different types of food. Some eat insects. Some eat fish. Some are adopted by human as Some eat pets meat. also. And some eat seeds, fruit, or nectar. Most birds fly. This But is not all of hummingbird, them. very small bird, Some birds, like a penguins, finger-like. use their wings small. to help them swim Penguins instead. are there. Other Ostrich, birds, how like the fast they are ostrich, running, though don't flight need is to not fly possible in because them, they can run but so they run fast. very fast. Still others, like the It kiwi, is woodpecker. were able to do without जिसे flight because कठफोड़वा the भी islands कहते on हैं, which they लकड़ी को ये live काट had few देता है. native predators. Birds are some of the most colorful animals on the This is planet. peacock. While many birds have feathers that are brown, gray, black, or white, colors तो that help इन सब में camouflage जो them and hide एंडोस्केलेटन them होता from है sight. वो बोनी होता है, Other उनमें birds एयर put on गैप होता है beautiful जिसकी वजह से displays. उनमें न्यूमेटिक In many cases, सिस्टम है. when we see a brightly colored bird, it is the male. Females are often more quiet colors that make them harder to spot. The male birds wear their bright, bold feathers to show the females how strong and healthy they are. एक्सोस्केलेटन So इसमें the फेदर females का know होगा that they would make a जो good कि ड्राई father. होगा. टेल ओनली मॉइस्ट एंड ऑयली होगा. Once eggs have been laid, someone has to take care of सो them. सच इज द एडॉप्टेशन In some bird जिससे कि species, ये एयर both में उड़ parents सकते take हैं. turns बीक्स keeping इज the देयर, eggs तो warm इसमें or बीक होगी. incubating them. जॉ तो होगा, In बीक others, होगी, टीथ नहीं only होगी. one parent does. Once the eggs have been laid, So they how may they are take as feeding little their as young 10 ones, it days has to been hatch, shown or over as here. many They as 80. prepare nest When the eggs before hatch, laying the eggs. baby So birds need crane help is to there, survive, uh, some more than others. which is trying to Some get baby fish. birds hatch blind and They featherless. care for their and need to be babies fed after and they are kept warm hatched by out their until they parents. fly. So Other chicks are ready to run around and eat the same day they hatch out. they all There are always care even a for few their kinds of birds that can babies. fly and take care of themselves as soon as they hatch. Other birds, however, will take care of their chicks for a very long time. The greater frigate bird will help feed and take care of its chick for A almost number 2 of birds years are after it coming hatches. during spring season in India Many types of from birds are Siberia, important as to very humans. cold there is, the minus Some birds 40 are degrees kept for their Celsius, so they eggs come or from meat. Russia here. Some birds are kept for their beautiful feathers. Still other birds are kept as So these are pets. various colored parrots. Most birds, however, are wild animals, and while we may enjoy watching them, they should be left alone. I hope you enjoyed learning about Vultures are birds today. saprophyte
Goodbye till They next eat time. only meat of the sapros, that is dead animals. Now, in penguin, flight is not possible. They live in cold areas, Australia mainly, New Zealand, so penguins are found. Otherwise, in snow area, they have much fat in their body, which protect them from snow or cold. Now we are in last and most complex class, that is mammalia of animal. So it is most complex and advanced class. They are mammals because they are having mammary glands. They are viviparous. They give birth to young ones. External skeleton is of hair and endoskeleton is of bone. So we also fall in this category, mammalia. Now, in case of mammalia, these are terrestrial, so they are found in polarized caps, deserts. So जहाँ पोल हैं, polarized cap, वहाँ पर भी आप देखेंगे कि बहुत सारे आर्कटिक और एंटार्क्टिक रीजन में भी बहुत मैमेलिया पाए जाते हैं. Like seal, walrus, they are found in polarized caps. Deserts में भी मैमेलिया है, कैमल है and other. Mountainous region में मैमेलिया पाए जाते हैं. याक, फॉरेस्ट रीजन में तो बहुत मैमेलिया पाए जाते हैं. ग्रास लैंड में पाए जाते हैं, जो मेड्यू है, चारागाह है. And dark caves, caves के अंदर भी मैमेलिया. It is bad how the skin is folded in it. It is shown that in bat flight is possible due to the foreskin between fingers. उसको इसने पंखों में बदल लिया है. That is foreskin is extended. That's why flight is possible. Otherwise, all mammals have mammary glands to feed their young ones. Carry their babies in pouches. Some have adapted to fly or live in water. तो कुछ पानी में भी रह सकते हैं, फ्लो कर सकते हैं. So ये ant eater है, अलग अलग तरीके से है. Just like every other species of mammal. And because of this, platypus that we have always recently take care of seen. their So offspring. Some for a very short different time, like the hooded seal examples that of nurses mammalia her have pups been for shown only 4 over days, here. or for a very long time, like the orangutan that nurses her baby They for care 7 for years. their young ones. अपने बेबी को पैदा करते हैं, विविपेरस हैं, और फिर उनका which रखरखाव means that they करते हैं maintain a constant internal body until they temperature. become adult. Keeping a stable body temperature takes a lot So of energy, outer skin which इनमें means that mammals need to eat more than cold-blooded animals हेयर of की होती है, similar सभी में आप size. देख रहे हैं हेयर है. However, होम्योथर्मस mammals है, get that energy बॉडी in टेम्परेचर many different कांस्टेंट ways. है. लाइक एविस, इनमें भी Some 4 mammals चैम्बर्ड are हार्ट है. carnivores, एंडोस्केलेटन eating बोन meat. का बना हुआ है. और इनमें एक नई बात है कि Some इनमें are पिना है. herbivores, पिना का eating मतलब only है plants. कि दैट इज एक्सटर्नल And ईयर some प्रोमिनेंट are है omnivores, और कान eating दिखाई both पड़ते plants हैं दूर से. and meat. कई में कवर्ड होते हैं. आप पिना देखें You will एलिफेंट का कितना probably बड़ा पिना है. recognize यू कैन many सी of the पिना types of mammals हाउ that are kept by humans. डेवलप्ड इट इज. सो Some are इनमें kept on एक्सटर्नल farms ईयर्स होते हैं to अभी do तक, जो work कि नहीं पाए गए or थे. provide food for people. सो किसी किसी में जो 4 लिम्स हैं Other वो mammals ग्रिपिंग are के very लिए popular यूज होते हैं, जैसे as हम pets. लोगों में. बाकी अदरवाइज ये टेट्रापोडा में बाकी तो There अपने are चारों many पैर more चलने types के of लिए mammals that are इस्तेमाल happiest करते हैं. living in the मंकी wild. है, चिंपैंजी है, ये अपने आगे के लिम्स को I थोड़ा hope you मॉडिफाई enjoyed करके learning ग्रिपिंग about के mammals लिए today. यूज करता है, Goodbye till जिसमें next थंब time. अक्रॉस फिंगर है, तो जिससे किसी चीज को पकड़ा जा सकता है. दिस इज प्लेटिपस, मूवमेंट ऑफ प्लेटिपस. इट इज अगेन ए क्यूट मैमेलिया. So they have 2 pairs of limbs adapted for walking, running, climbing, swimming or Try to flying. force the orcas to keep The their skin distance by of throwing mammals dynamite is at them. possessing hairs. External So the orcas have become ears rather are cautious pinna. towards human beings, Different types even of though they teeth haven't are given up on present. the Here easy we are pickings. seeing that एविस में Scientists have जॉज produced होते हैं, उनमें alarming टीथ नहीं होते figures. हैं, लेकिन इनमें 50% टीथ of the होते orcas हैं. in the region So, have disappeared. And it's हार्ट इज vicious. 4 चैम्बर्ड. How होम्योथर्मस. रेस्पिरेशन सब में लंग से होता है.
हियर वी आर सीइंग व्हेल द मैमथ, सबसे बड़ा When मैमेलिया। prying तो आप rivals, देखें व्हेल में सबसे बड़ा मैमेलिया This है potential जो rival पानी is में already एक साथ अपने calculating बच्चे the को odds. दूध पिलाने के लिए 400 लीटर दूध एक साथ बहा देता है, जिसमें उसका बच्चा 10% the दूध ही role पीता of है। dominant male is So, highly coveted. And सक्सेस on आर this सेपरेट fish, there's only डाइएशियस, room for one. फर्टिलाइजेशन इनमें इंटरनल Conflict होता is है inevitable. और बच्चों को जन्म देते हैं। दे आर विविपेरस विद फ्यू एक्सेप्शंस, अदरवाइज दे आर विविपेरस। सो ओविपेरस में प्लेटिपस आ जाता है, बाकी तो Another female विविपेरस। arrives. विविपेरस में कंगारू है Distracted by जो the अपने बच्चे advances को of इतना two छोटा males, बच्चा होता she है कि doesn't see उसको the danger पॉकेट में लेकर until के, too late. टमी में पॉकेट है उसमें लेके घूमता है। सी व्हेल इज सो मैमथ। नाउ Ratus canis, that is rat, dog, Her long journey Felis, is over. cat, She'll never give birth to a Elephas, pup. that is elephant, Equus, that is horse, Hunting this way Delphinus, shows how the dolphin, orcas have adapted to that life is around these islands. Balanoptera, that is blue whale, Allowing the and others to Panthera join the kill tigris, is a tiger, form of- Panthera leo, The rest of the family lions has been are alerted to the examples catch. of mammalia. So in case of Allowing the others to join the mammalia, kill we all is are a form of having initiation. bilateral And symmetry, DNA studies show coelomating. the dominant male There is is far from being the father of all the pups. digestive system, circulatory system, respiratory system, everything is complete. Notochord is present in all chordata, हमने देख लिया। So जो इसमें नोटोकॉर्ड भी है और नर्व कॉर्ड भी है, तो नर्व कॉर्ड है वो सारी डॉर्सल साइड में Hormonal होती है। urge to mate leads to गिल्स होते outright हैं war. किसी में लिम्स होते हैं और किसी में फिन्स होते हैं। तो हमने ये देख लिया कि कॉर्डाटा में अलग अलग डिवीजन किए गए हैं। तो पहला कॉर्डाटा का डिवीजन है कि जिसमें हमने ये देखा कि अगर नोटोकॉर्ड सिर्फ टेल में है तो यूरोकॉर्डाटा बोला जाता है, जिसमें पूरी बॉडी में है तो उसको प्रोटोकॉर्डाटा बोला जाता है, दैट इज सीफेलोकॉर्डाटा बोला जा सकता है या फिर प्रोटोकॉर्डाटा बोला जा सकता है। और वर्टिब्रल कॉलम अगर प्रोमिनेंट है, बहुत अच्छा है, तो फिर उसको हम वर्टिब्राटा कहते हैं। सो वर्टिब्राटा में भी डिवीजन हमने कर दिए कि किन में जॉज नहीं हैं। अगर जॉज नहीं हैं तो फिर उनको हमने अग्नाथा कहा और उसके अंदर में एक सर्वाइविंग क्लास है जिसको साइक्लोस्टोमाटा कहा। बाकी जिनमें जॉज हैं उनको ग्नैथोस्टोमाटा कहा और ग्नैथोस्टोमाटा में फर्दर दो डिवीजन किए कि जॉज तो हैं लेकिन लिम्स नहीं। जिनमें लिम्स नहीं है, फिन्स हैं, उनको हमने पिसेस कहा। जिनमें लिम्स हैं उनको टेट्रापोडा कहा। तो पीसेस में दो डिवीजन हो गए, एक कॉन्ड्रियोच थाइस और ऑस्ट्रिच थाइस, जबकि टेट्रापोडा में 4 क्लासेस आ गई जिसमें एम्फीबिया है, रेप्टिलिया है, एविस है और मैमल्स है। सो मैमल्स इज द मोस्ट एडवांस एंड कॉम्प्लेक्स क्लास। किसी में हेयर नहीं भी हैं, जैसे हमने देखा व्हेल है, तो व्हेल के केस में हम देखते हैं कि इनमें हेयर नहीं है, बट इट इज़ मैमल और बच्चों को जन्म देती है। और मैमल्स में मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं तो फीड मिल्क टू देयर यंग वंस। Mammary glands produce milk and the platypus is oviparous. इसमें एक ऐसा है जो oviparous है वो platypus है, अदरवाइज सारे अपने बच्चों को जन्म देते हैं। They care for their babies. Thank you.